Total parts of speech are 8. 1. Nouns. 2. Pronoun. 3. Adjectives. 4. Verbs. 5. Adverbs. 6. Prepositions. 7. Conjunctions. 8. Articles. Number 5. Adverbs. An adverb is a word that describes an adjective, a verb or another adverb. Take a look at these examples. Here is an example: I entered the room quietly. Quietly is describing how you entered the room. Here entered is a verb. Here is another example: a cheetah is always faster than a lion. Always is describing how frequently a cheetah is faster than a lion. Here faster is an adjective. फ़ेल मुतालिक यानी एडवर्ब। एक फ़ेल मुतालिक एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी सिफत, फ़ेल किसी और फ़ेल मुतालिक को बयान करता है। इन मिसालों पर एक नज़र डालें। पहली मिसाल में खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ। खामोशी से बयान कर रहा है कि तुम कमरे में कैसे दाखिल हुए। यहाँ दाखिल होना एक फ़ेल है। दूसरी मिसाल, चीता हमेशा शेर से तेज होता है। हमेशा यह बताता है कि चीता कितनी बार शेर से तेज होता है। यहाँ तेज एक सिफत है। Number 6. Prepositions. Prepositions tell you the relationship between the other words in a sentence. Here is an example: I left my bike leaning against the garage. In this sentence, against is the preposition because it tells us where I left my bike. Here is another example. She put the pizza in the oven. Without the preposition in, we don't know where the pizza is. 6. हर्फ जार prepositions. हर्फ जार एक जुमले में अल्फाज के दरमियान ताल्लुक बताते हैं। यहाँ एक मिसाल देखिए: मैंने अपनी मोटरसाइकिल को गैराज के सामने टेक लगाकर छोड़ दिया। इस जुमले में सामने हर्फ जार यानी प्रीपोजिशन है, क्योंकि यह हमें बताता है कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ी थी। यहाँ एक और मिसाल देखिए: इसने पिज़्ज़ा को तंदूर के अंदर डाला। इस जुमले में लफ्ज़ अंदर के बगैर हम नहीं जान सकते थे कि पिज़्ज़ा कहाँ है, इसलिए लफ्ज़ अंदर एक हर्फ जार यानी प्रीपोजिशन है। Number 7. Conjunctions. Conjunctions make it possible to build complex sentences that express multiple ideas. I like red apples. I like green apples. I don't like cherries. Each of these 3 sentences expresses a clear idea. There is nothing wrong with listing your preferences like this. But it is not the most efficient way to do it. Consider instead: I like red apples and green apples, but I don't like cherries. In this sentence, and but are the 2 conjunctions that link your ideas together. 7. Conjunctions. Conjunctions पेचीदा जुमलों की बनावट को मुमकिन बनाते हैं, जो बहुत से ख्यालात का इजहार एक साथ करते हैं। मुझे सुर्ख सेब पसंद हैं। मुझे सब्ज सेब पसंद हैं। मुझे चेरी पसंद नहीं है। इन तीनों जुमलों में से हर एक वाज़े ख्याल का इजहार करता है। अपनी तरजीहात को इस तरह दर्ज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा करना मुअस्सर गुफ्तगू का तरीक़ा नहीं है। इसके बजाय इस एक जुमले पर गौर करें: मुझे सुर्ख सेब और सब्ज सेब पसंद हैं, लेकिन मुझे चेरी पसंद नहीं है। इस एक जुमले में और इसके बाद लेकिन वो 2 कंजंक्शंस हैं जो आपके ख्यालात को आपस में जोड़ते हैं। Number 8. Articles. A pair. The brick house. An exciting experience. These underlined words are known as articles. Like nouns, articles come in 2 flavors: definite articles and indefinite articles. And just like the 2 types of nouns, the type of article you use depends upon how specific you need to be about the thing you're discussing. A definite article describes one specific noun, like the and this. For example, did you buy the car? Now swap in an indefinite article: did you buy a car? See how the implication is gone and you're asking a much more general question. एक आम
कोई मखसूस ईंटों का घर। एक दिलचस्प तजुर्बा। ये पीले रंग वाले अल्फाज आर्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। इसम की तरह आर्टिकल भी दो किस्मों के होते हैं, मुतलक आर्टिकल और गैर मुतलक आर्टिकल, और बिल्कुल दो किस्म के इसम की तरह। आप जिस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए आपको कितना मखसूस होना ज़रूरी है। एक मुतलक आर्टिकल एक मखसूस इस्म की वजाहत करता है। मिसाल के तौर पर ये जुमला देखिए, क्या आपने वो मखसूस कार खरीदी। अब इस जुमले को एक गैर मुतलक आर्टिकल में तब्दील करें, क्या आपने एक कार खरीदी। देखिए यहाँ कैसे किसी मखसूस कार का जिक्र ख़त्म हो गया है और अब आप किसी भी आम कार के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक फौरी पहुंच जाए। शुक्रिया।